Hi guys, welcome to Inside SSB YouTube channel. So we are here with FCAT strategy for 1 month. Now before moving forward, it is important that you gain confidence that it is actually possible to clear the examination in 1 month. I will share few facts and figures that will make you understand that it is very easy and it is easily doable. FCAT examination is one of the easiest examination to get A grade job, to be very precise. Okay, there are a lot of examination talking about SSC CGL, banking examination that are quite hard to clear. Why? Because these days if you go and check their cutoff, it is too much. Okay, you cannot afford doing anything negative there. That is, you cannot afford any question going wrong in the examination, not more than 2-3 questions. But when we come to FCAT examination, the cutoff is hardly 50 to 60%. That is, it varies from 145 marks to 165 marks usually. So it is pretty much doable, because if we talk about the level of examination, it is very less as compared to any A grade job. That is UPSC Civil Services, UPSC CDS examination, CAPF examination. It is very easy when we compare to these examinations, and even the syllabus is lesser than any SSC CGL exam, banking exam. So it is very much doable. Coming to the second point, there is no individual cutoff. Like, you don't have to score anything individually within English, maths, GK, reasoning. If you are weak in a subject, it will suffice. It doesn't matter कि आपको सब कुछ आता हो examination के लिए. Okay, so please, you can even feel free about the fact जो आपके exam में plus points है, the things that you're confident about, prepare it well. दूसरे section में सिर्फ important sections करके जाओ. That's it. Coming to the syllabus of the examination, syllabus is too easy. When we come to reasoning section, basic reasoning comes, not the hard one. Mathematics, only arithmetic जो आपने 7th 8th में पढ़े होते हैं, those question come up in the examination. Okay, not even 10th level, 11th 12th, no trigo comes in the exam, nothing like integration, differentiation, nothing like that. Very easy examination. Coming to the next thing, the seats available in this examination is too much. Every year this examination is conducted twice with almost 7,000 to 10,000 seats. That is, in the first slot, almost 7 to 10,000 people clear the examination. And as I already told, the level of each and every part is so easy. GK में particular sections आते हैं, and I'm sure that till now you must have gained that confidence that yes, it is doable. It is pretty much doable. Last year, when we talk about the crash course of ours, our student could clear the examination very easily with 200 plus marks. Those people who couldn't clear the examination in the first go. To know the strategy, that what exactly we did last time that our students were able to clear, we are going to discuss all of those details कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, because आप सब अलग हो. Every student is very different when it comes to clearing the examination that are government examination, because आप सबके background अलग है. You all have done graduation in different subjects. Okay, so we have this record of 1 year of teaching, and we have this record of making sure that a lot of our students make it through. So let us discuss the strategy, jumping right into the video now. Now, the first thing that I would like to say is that if you have dreamt it, believe in yourself, you deserve it and you will make it through. लेकिन हमें उसके लिए एक proper planning करनी पड़ेगी. Coming to the first thing, there are total 4 subjects that we have, and वो equally distributed नहीं है. Okay, 32% is what reasoning holds, और ये सबसे easy section है. Fine. Moving on to the next thing, mathematics, only 18%. Lot of people have fear कि maths नहीं आती है. सिर्फ 18 questions आते हैं out of 100 questions. Even if you don't know, it is completely fine. बहुत basic level mathematics आती है, 7th 8th 9th level. Okay, सेम इज द केस विद जनरल स्टडीज़. इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं. वील डिस्कस कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू. ओके, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन, आप बहुत मिसमैनेज तरीके से पढ़ते हो. यू स्टार्ट स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग. आप सोचते हैं दैट इन अनदर 30 days आप सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स लर्न कर लोगे, 1000 वर्ड्स याद कर लोगे, इंस्टेड ऑफ
थिंकिंग कि अगर मैं इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो लगाऊं, कि अगर मैं इसमें 1 घंटा दे रहा हूं, क्या मुझे उसका कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है? बिकॉज फाइनली 5 क्वेश्चंस आने हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के. डू आई रियली नीड टू पुट इन दिस मच एफर्ट्स कि मैं ये करूं, इंस्टेड मैं ये टाइम मैथ्स, रीजनिंग या फिर जीके में लगाऊं तो मेरे शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे. बट यू नेवर थिंक लाइक दिस एंड दिस इज द रीजन दैट यू हैव बीन फेलिंग. अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज टू प्लान कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है. नाउ एवरीबडी इज नॉट सिमिलर हियर, ओके. आप में से बहुत लोग डिफरेंट काइंड के बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सबकी अलग लेवल की प्रेपरेशन है एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि लास्ट मंथ में क्या करना है. There are total 3 type of students according to me, and according to that very fact I'll let you know. The first category that I have is the one जिन्होंने प्रिपेयर किया है, पिछले साल भी प्रिपेयर किया है, लेकिन हार्डली 2 to 3 मार्क्स से वो लोग रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 165 मार्क्स, आपके कुछ 160 मार्क्स, 156 मार्क्स, कुछ इस तरीके से रहे हैं. सो यू आर इन कैटेगरी 3. I assure you one thing, if you watch this video, you will get 200 plus marks because I'll let you know the areas from where you need to read और आप क्या mistakes कर रहे हैं. Category 2 involves all those people जिन लोगों ने बिना किसी preparation के, without any preparation, आज की डेट में भी अगर वो question paper solve कर रहे हैं, they are able to get 100 plus marks. I assure these people you can easily get 180 plus marks, like 180, 190 I can tell, आपके आराम से आ जाएंगे. And there is this third category जिसकी बिल्कुल भी preparation नहीं है and they are not even able to score 100 marks when they do this paper of 300 marks. So ये 3 category के लोग हैं. I assure one thing that even category 1 can clear the examination, okay. So now you need to have a proper strategy. पहली बात, हम अपनी mistakes से learn करेंगे. First thing is that stop listening to your friends. I know आपके बहुत सारे friends होंगे being a defense aspirant and आपको सब लोग suggest करते हैं that please go and read R.S. Agarwal. Have you seen कि वो कितनी heavy book है. Second thing is go and read अरिहंत की बुक. अरिहंत की बुक भी 300 पेजेस की आती है. थर्ड थिंग इज एनसीईआरटी पढ़ लो. अरे एवरीबडी इज रीडिंग एनसीईआरटी, व्हाट इज द डिफरेंस? एक महीने में इज इट पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स? प्लीज बी लॉजिकल. आई डोंट थिंक सो. फिर आप पूछेंगे मैम पढ़ना कहाँ से है? The first thing that you have to do is previous year questions. उठाओ उन papers को, try and analyze कि questions आ कहाँ से रहे हैं. आप बिना previous year questions के इन books को उठाएंगे, it is useless. And the second thing that you need to do is after watching previous year questions, see that which type of questions are covering और उसे एक single source, one source से complete करो. One source में include your books, में include any XYZ course, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी वन सोर्स और उस पर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. एक जगह तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, आई अश्योर यू वन थिंग, आप इधर उधर जगल अप करेंगे एंड फाइनली आपके मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, एक बुक पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स करो. ठीक है, मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है, सिंगल सोर्स से सब कुछ करो. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करेंगे. ओके, एज मैंने आपको दिखाया देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट्स, लेकिन 4 सब्जेक्ट्स को हमें इक्वल वेटेज नहीं देनी है. द बेस्ट पार्ट बीइंग कि हर सब्जेक्ट का कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है. हमें 2:1:1 की रेशो में चीज़ों को रखना है. दीज 2 सब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी गुड. इसमें आपको एक चीज़ की अश्योरिटी रखनी है दैट इफ़ यू डू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज अगर इसमें से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए. ओके, आपकी एक्यूरेसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए 2 सब्जेक्ट्स में. और ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको बता देती हूँ, कैन बी एनीथिंग. फर्स्ट वाला तो सबके लिए रीजनिंग रहना चाहिए, बिकॉज रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे इजीली मार्क्स गेनेबल सब्जेक्ट है ये. ओके, कमिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, इट कैन ईदर बी मैथ्स, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर गुड इन मैथ्स. बहुत होते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिनकी मैथमेटिक्स ट्रेमेंडसली गुड होती है, दे कैन गो फॉर इट. Second category is GK. People from arts background, people preparing for CDS examination, civil service examination, they can go for this category. Even if you are preparing for SSC, well and good.
आप जीको को होल्ड ऑन कर सकते हो। द थर्ड कैटेगरी इज इंग्लिश। लोगों की मे बी स्पोकन इंग्लिश अच्छी ना हो, बट उनकी जो ग्रास्प है टूवर्ड्स ग्रामर, दे आर वेरी गुड इन इट, सो यू कैन गो फॉर इंग्लिश। एनी 2 सब्जेक्ट्स आप उनको मैक्सिमम टाइम देंगे। ओके ये जो आप डिफरेंस कर रहे हो ना रेशो वाइज में, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर आप जो टाइम दोगे ना वो बॉक्स के साइज के हिसाब से दोगे। अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हो कि मुझे 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, सो आप मैक्सिमम टाइम फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को दोगे। द सेकेंड बॉक्स दैट इज वन थिंग जो आप मॉडरेटली पढ़ोगे कि आपके जो मार्क्स आए वो मॉडरेटली आ जाए इसमें। दैट इज इफ यू आर डूइंग 25 क्वेश्चंस आते हैं अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, तो आउट ऑफ दीज 25 आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं और आपको 15 ही क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। विद एवरी क्वेश्चन यू गेट 3 मार्क्स, बट विद एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू ऑल्सो गेट -1 मार्क्स। ओके तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ उन सेक्शंस पे ध्यान दो जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, सो इंग्लिश में अगर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे नहीं हैं, लीव इट, कम ऑन गाइज, जस्ट 1 मंथ इज लेफ्ट, नॉट पॉसिबल आप सब कुछ कर सके। आप अपना ध्यान कहाँ दे सकते? यू कैन फोकस ऑन क्लोज टेस्ट, यू कैन फोकस ऑन एरर डिटेक्शन, ठीक है, यू कैन इवन फोकस ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बिकॉज ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत ईजी आते हैं। पैराग्राफ्स इतने ईजी आते हैं एफकैट एग्जाम के अंदर। 10th 11th 12th में जो हम पैराज करते थे ना अपने स्कूल टाइम पे, वो क्वेश्चंस आते हैं गाइज, वेरी वेरी सिंपल। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जीके करना चाहते हो जीके कर लो, यहाँ पे जो मन करता है कर लो। ये छोटे वाला जो बॉक्स रहेगा ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, मतलब एक्सट्रीमली वीक। लॉट ऑफ यू मस्ट बी लाइक मैथ्स नहीं आती है मुझे मैम, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई रेड मैथ्स। सम ऑफ यू विल बी लाइक मैम इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आई एम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड। इट इज़ कंप्लीटली फाइन विच एवर सब्जेक्ट यू फील इज वीक। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने। 18 मैंने किसलिए रखा? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव मैथ्स का इशू, राइट। ये जो 10 क्वेश्चंस है ना ये बहुत इजीली अचीवेबल है, आई विल टेल यू कैसे, बट प्लीज आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखना। ओके एज वी हैव डिसाइडेड कि हमें कौन से सब्जेक्ट करने हैं, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, आप इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे। वंस डन विद दिस विल मूव फॉरवर्ड। ओके नाउ मूविंग ऑन टू प्लानिंग ऑफ मैथमेटिक्स, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन आवर हेड इज दैट जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, ओके उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी और सिंपल आते हैं, आई कैन नॉट टेल यू। लेकिन जो अदर 4-5 क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही टफ होते हैं। ये सेक्शन कीप इट फॉर दोज पीपल जो मैथ्स में अच्छे हैं, इसको आप भूल जाओ। ओके इन केस यू आर नॉट गुड इन मैथ्स। हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज दीज 10 इजी क्वेश्चंस। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर से। ओके प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रिपीट होती है, लेकिन थोड़ा एफकैट स्मार्ट होता जा रहा है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग दीज डेज। सो जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज जो टाइप है क्वेश्चन के वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आने लगे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे अगर हम वर्क चैप्टर की बात करते हैं, सो वर्क में क्या होता था, जैसे टाइप 1 की बात करती हूँ कि ए बी और सी हैं, ठीक है, ये एक साथ काम कर रहे हैं और इसमें से बीच में सी जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में काम होगा, हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर ए एंड बी टू कवर अप द वर्क। ओके मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप दैट इज कि ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, 5 दिन के बाद बी जो है वो छोड़ के चला जाता है और सी जो है वो 15 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, तो कितना टाइम लगेगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो क्वेश्चन का लेवल है राइट वो इंक्रीज हो रहा है थोड़ा, दैट इज इट, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रिटी मच सिमिलर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैथ्स में आप लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है दैट इज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू स्कूल लेवल। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि आप 7th 8th 9th 10th की मैथ्स इमिडिएटली 1 महीने में सीख लोगे, आई एम सो सॉरी, यू आर लिविंग इन सम मिथिकल वर्ल्ड। What you have to focus right now on is that you learn the tricks to solve the questions in a easy way. अभी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ट्रिक्स। ओके
ट्रिक्स जो हैं ये क्या करेंगी, पहली बात हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम के अंदर, वी डोंट हैव एक्स्ट्रावेगेंट टाइम विद अस कि हम कितना भी एग्जाम में अपने आप को स्ट्रेच कर ले, इट इज फाइन, वी डोंट हैव 4-5 आवर्स, वी हैव लिमिटेड टाइम, उसी में क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में कवर अप करने की हेल्प करे, राइट. सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड्स जो कि आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी बुक्स है जिसके अंदर ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड है. यू कैन इवन गो फॉर इनसाइट एसएसबी कोर्सेज. उसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि जो हर एक टॉपिक है उसको डिफरेंट टाइप्स, जैसे मैंने अभी आपको टाइप्स बताई है ना, इस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चंस गिवन हैं. एंड इन दैट टाइप ऑल्सो वी हैव गिवन यू लॉट ऑफ ट्रिक्स जिससे आप वो क्वेश्चंस जो हैं उनको जल्दी सॉल्व कर पाए, बिकॉज 1 month इज देयर एंड वी नीड ट्रिक्स so that we stay accurate in the examination, right? So please focus on these things when it come to mathematics. और mathematics का मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ. SSC previous years are very very important. Why am I saying this thing to you is because SSC previous years में से as it is काफी questions जो हैं वो देखने को मिलते हैं in FCAT examination because the level is rising as I told you, okay? सो SSC प्रीवियस ईयर्स कर लो. लास्ट टाइम ऑल्सो व्हाट वी डिड इज जो हमारा 1 month का क्रैश कोर्स था, इन दैट वी फोकस्ड अ लॉट टूवर्ड्स SSC का जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वी फोकस्ड ऑन दैट प्लस FCAT का बेसिक लेवल. एंड यू विल नॉट बिलीव इट, स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 188 marks, 186 marks, 222 marks. So a lot of students got help out of these things, okay? So you need to work very very smart in this very sense and we believe in smart work, okay? So I guess that we have discussed a lot of mathematics by now and you have an idea कि किस तरीके से हमें cover up करना है. Moving on to the next and the most important thing, that is the reasoning section. Reasoning एक best section है and it is a place जहाँ पर आपको 100% result देखने को मिलेगा, ठीक है. 25 से लेकर 30 तो easily achievable है out of 32 questions, okay? और इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, just regular 1 hour practice चाहिए. और that too you can do from our practice sets that are available on Insight SSB app. दैट इज द बेस्ट मटीरियल. वहां पर आपको रीजनिंग के इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि डायरेक्टली इसमें से आप 10 क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम, ओके, एज इट इज. एंड अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे. सो प्लीज बिलीव ऑन अ फैक्ट कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप इजिली मार्क्स जो हैं अचीव कर सकते हैं. देयर इज वन थिंग वेयर यू नीड to work a little hard when it comes to reasoning and that is verbal reasoning के अंदर जो आपका analogy वाला section है, that is a little different. Why? एक तो odd one out है, एक analogy है, ये वाला थोड़ा सा एक ऐसा section है जहाँ पे आपको efforts थोड़े ज़्यादा put in करने पड़ेंगे. लेकिन these are the topics और आप please सिर्फ ये करना, don't go for dice वाले questions etc because they don't come up in FCAT examination. Fine. Now if we talk about the tough section, that is verbal reasoning, ये है एक example. Choose odd one out. So insect, entomology, fish, pisciculture, birds, horticulture, silk, sericulture. अब यहाँ पर what is different? What you can see is कि यहाँ पे रीजनिंग के अंदर आपका जीके का सेक्शन या फिर इंग्लिश का जो सेक्शन है वो इन्वॉल्व किया जाता है. सो रीजनिंग प्लस जीके प्लस इंग्लिश मेक योर वर्बल रीजनिंग एंड दिस इज व्हाई इट गेट्स डिफिकल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑड वन आउट इसमें से चेक करो. ये किस बेसिस पे कर सकते हो आप? एनिमल किंगडम के बेसिस पे कर सकते हो, राइट? मूविंग ऑन टू दिस वन, ये आप किस बेसिस पे कर सकते हो? बायोलॉजी के थ्रू कर सकते हो. सो इसमें आपकी जो नॉलेज है दैट इज रिक्वायर्ड, जीके की नॉलेज चाहिए आपको, इंग्लिश की भी नॉलेज चाहिए. सो इसके लिए आप बेस्ट क्या है ना, दैट इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको प्लीज आप बार बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो. एटलीस्ट अपने दिन में एक बना लो कि आप टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट, और उससे बाहर कहीं नहीं आएंगे. एटलीस्ट आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसके, यू विल बी एबल टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज वर्बल रीजनिंग में कि आपके प्रीवियस ईयर्स जो हैं फ्रॉम FCAT वो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं. मेनी टाइम्स दिस थिंग हैव बीन सीन इन द एग्जामिनेशन. Moving on to the next thing, that is English, a section where you do the biggest mistake. Why? Because आपको ऐसा लगता है कि मैं antonyms, synonyms अभी से याद करना शुरू कर दूंगा तो मेरा तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. Antonym and synonym is one of the area जहाँ पर आपको एक persistent और रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. Persistent in what sense? आपको अगले 1 साल 2 साल न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा.
जो रोज वर्ड्स आते हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा. लॉट ऑफ पीपल से दिस थिंग टू मी कि मैम न्यूज़पेपर में जो वकैब आती है ना उसको पढ़ने से इट हेल्प्स अ लॉट. नाउ टेल मी वन थिंग, आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो, उसमें कितने सारे वर्ड्स आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. सो व्हाट इज अ फैक्ट इज कि आप ऑलमोस्ट सारे डिक्शनरी के वर्ड्स कवर अप कर रहे हो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस. तो ऑफकोर्स वहां से तो आएंगे ही आएंगे, राइट. सो प्लीज अवॉइड सिनोनिम एंटोनिम सेक्शन. ये आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन वो कर लो कवर, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. एल्स इन दैट प्लीज लीव दिस सेक्शन. उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत मेहनत करो, ज़्यादा नहीं. मैक्सिमम मेहनत इसमें डालो अगर आखिरी के एक महीने में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. पैसेज क्लोज टेस्ट क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रीडिंग सेक्शन. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह का रीडिंग सेक्शन है. ये बहुत इजीली सॉल्वेबल है अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो, एज आई टोल्ड अबाउट योर रीजनिंग सेक्शन. ओके, इन द सिमिलर वे इट्स वेरी इजी. एरर वाला ऐसा सेक्शन है जिसको आप बिल्डअप कर सकते हो. आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं एंड यूल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली. ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की तरह. अगेन मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हो आप यहाँ. Now moving on to the next thing, that is general studies. Oh my god, you do the biggest mistake here. Now if I talk about general studies, believe one thing, जनरल स्टडीज़ को आप किस तरीके से पढ़ते हो, CAPF, CDS एग्जाम या फिर कोई भी XYZ UPSC एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर देते हो. NCRTs, आई डू अंडरस्टैंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर UPSC लेवल एग्जामिनेशन, नॉट फॉर FCAT. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहाँ पे जोग्राफी, यहाँ पे पॉलिटी, यहाँ पर साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, अगर आप इसे पढ़े जा रहे हो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. और आपके पास आखिरी का एक महीना है, आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर स्टडिंग इट लाइक दिस. यहाँ पर आपको स्मार्ट एक्ट करना है. एज इनसाइट SSB जस्ट टॉक अबाउट स्मार्ट स्टडीज़. मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं टाइम इज टू बेनिफिट रेशो देखूँ. अगर मैं इसमें टाइम लगा रही हूँ, क्या मुझे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? क्या आप कभी भी सोचते हैं एग्जाम में पढ़ने से पहले कि क्या मुझे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या सिर्फ आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो? प्लीज ट्राई एंड एनालाइज दैट थिंग. क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर? स्टैटिक सेक्शन से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिफेंस रिलेटेड, आपसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. ओके, आपसे जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं. हिस्ट्री काफ़ी मेजरली आती है, लेकिन ये वाले जो सेक्शन है ये नहीं पूछे जाते हैं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर. आते हैं किसी 2-3 साल के अंदर आपके अगर आ गए तो 3-4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आ गए, जिनको देख के आप डर जाओगे. यूल बी लाइक अब तो मुझे ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए. लेकिन आपने ये तो फोकस किया नहीं. अभी भी 10 से 15 क्वेश्चन मेरे यहाँ से आ रहे हैं, और अगर मैं ये अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ तो इट डजंट मैटर वेदर आई एम एबल टू वर्क हियर और नॉट. ओके, नाउ मूविंग टू अ फैक्ट कि ज्योग्राफी से कहाँ क्वेश्चन आते हैं. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, करेंसी, ठीक है, जो आपकी लाइन से कहाँ से पास होती है, स्ट्रेट्स, चैनल्स, बॉर्डर्स, दीज आर द एरिया जहां से क्वेश्चन आते हैं. पूरी ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है आपसे एग्जाम के अंदर. ओके, पॉलिटी वाला सेक्शन, फंडामेंटल राइट्स बेसिक कर लो, वहां से क्वेश्चन आएगा, मैक्स टू मैक्स आएगा. प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स. दे वोंट आस्क यू इन डेप्थ क्वेश्चन. इट इज नॉट CDSE एग्जाम, इट इज नॉट CAPF एग्जामिनेशन. साइंस में आपसे कोई फॉर्मूलाज नहीं पूछ रहा है. अगर पूछेंगे भी तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड आप नहीं कर पाओगे, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप कर लोगे. ठीक है, so leave these questions aside, focus on the areas जहां से question आ रहे हैं, and I'm going to cover it for you. Okay, talking about current affairs एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती है. मैक्स टू मैक्स आ गई तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, and I'm already covering that. मैं 5 से 6 कुछ पार्ट्स लेके आऊंगी फॉर करंट अफेयर्स, तो प्लीज जस्ट फॉलो देम. ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे ऑन यूट्यूब चैनल. अगर क्वेश्चंस आए करंट अफेयर्स के तो वहीं से आएंगे, सो जस्ट फॉलो इट. ठीक है, दैट विल बी मोर देन हेल्पफुल. उसके अलावा यू डोंट नीड टू टच एनीथिंग. ओके, नाउ रेगुलर टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो मैं अपने क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करती हूँ. ठीक है, लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड दिस क्रैश कोर्स एंड इट गेव वेरी गुड रिजल्ट. ठीक है,
बच्चों ने ये क्रैश कोर्स फॉलो किया था, 183 मार्क्स, 182, 188, ठीक है, ऐसे मार्क्स देखने को मिले थे. देयर आर लॉट ऑफ अदर स्क्रीनशॉट्स व्हिच यू कैन गो एंड चेक ऑन इनसाइट एसएसबी इंस्टाग्राम हैंडल. यू विल इजीली फाइंड सो मेनी रिव्यूज अबाउट एफकैट क्रैश कोर्स. एंड इवन देयर वाज अ स्टूडेंट जिसने 10 दिन पहले सिर्फ जीके के कोर्स में एनरोल किया था इन एफकैट 1 2021 और उसको 20 क्वेश्चन उसके डायरेक्टली सॉल्व हो गए थे, ठीक है. सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट इनसाइट एसएसबी होल्ड्स. एंड जो हमने टॉपिक कवर किया, आई जस्ट show you these are the topics that are covered. Now just clearly look here. यहाँ पर आपको 7 से 8 मिनट की कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी, मुश्किल से 10 वीडियो इन वन पर्टिकुलर, 10 से 15 वीडियोस रहेंगी आपकी पर सब्जेक्ट वाइज और यहीं से क्वेश्चन आने और कहीं से भी नहीं आएंगे. जस्ट फॉलो दिस. अगर आपने ये भी फॉलो कर लिया, आई कैन अश्योर आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एंड आई अश्योर यू 50+ मार्क्स, 50+ तो सिर्फ कहने की बात है. आई कैन अश्योर 60 to 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे just by reading what we are teaching on Insight SSB GK course. Okay, that is more than enough. Talking about the crash course, all 4 subjects will be covered. जितना मैंने आपको बताया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. If you just want to focus on working hard instead of preparing your strategy, finding out questions, what is to be done, follow this crash course. 20th July से start है. We give you assured marks. Now moving on कि regular timetable क्या होना चाहिए. I will be sharing the timetable of my course that in the last examination my students followed and got a tremendous result. जो आपका रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए उसमें एक चीज़ का फोकस रखना जो कि आज की डेट में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है. कोई भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी XYZ स्ट्रैटेजी प्लानर्स हैं, they don't follow this. This is one thing that only Insight SSB follows, and this is the reason why my students are getting such good results. जो हमारा टाइम टेबल होता है that is divided into 3 parts. Okay, what are these 3 parts? The first part is studying, the second part is revision, and the third part is question practice. ये आपको ऑलमोस्ट 30 days फॉलो करना है टू गेट गुड मार्क्स इन एफकैट. और गुड मार्क्स से आई मीन 200+ मार्क्स. ओके, अब आप क्या करते हो, आप पढ़ना तो शुरू कर देते हो फर्स्ट डे ऑनवर्ड टिल 30th डे, ठीक है. लेकिन आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा वो जो आपका 30th डे होगा उस पर आप वो क्या करोगे, भूल जाओगे. और भूलते ही जो आपकी है टेंशन दैट विल राइज. और अगर आपकी टेंशन बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस होगा लूज, और कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ठीक है. और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि दिन में अगर मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो फर्स्ट आवर मुझे पढ़ना है, सेकेंड आवर मुझे रिविजन करनी है और थर्ड आवर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ नहीं आएगा कि नेगेटिव कितने हो रहे हैं, मेरे गलत मार्क्स कितने जा रहे हैं. अगर नेगेटिव ज़्यादा कर रहा हूँ तो एक्यूरेसी सही नहीं है, एक्यूरेसी सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब एनालाइज करना. और मुझे कितने क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करके आने आउट ऑफ 100, क्या मुझे 70 करने हैं, क्या मुझे 80 करने हैं, या मुझे 90+ करने पड़ेंगे बिकॉज मेरी एक्यूरेसी खराब है. सो ये किससे पता चलेगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू. सो अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूँ तो 30 days में हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, और वो इसी टेक्निक के थ्रू कवर होगा. देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज जो अगले 10 दिन बचेंगे बिटवीन द एग्जामिनेशन, उसमें हम लगातार रेगुलरली एक पेपर सॉल्व करेंगे. उससे क्या होगा, पेपर सॉल्विंग से क्या होता है, वी गेट टू नो कि हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं. बिकॉज एग्जाम में फाइनली एज आई टोल्ड यू कि 70 करने, 80 करने, 90 करने, वो हमें उससे पता चलेगा. और आखिरी के 10 दिन इज नॉट द टाइम व्हेन यू स्टडी समथिंग न्यू. आखिरी के 10 दिन इज जस्ट अबाउट रिविजन. तो ये जो स्टडी वाला टाइम है वो हट जाएगा. 2 घंटे जो आपकी रिविजन होगी और उसके बाद आपका एक टेस्ट सॉल्व होना शुरू हो जाएगा आखिरी के दिनों में. This is the strategy that you need to follow. This is the regular timetable that you need to follow in the last month if you wish to clear the examination. I hope that I've been quite loud and clear to you, and this is the strategy. If you follow it, you will make it through. So guys, in case you wish, just go and enroll for this course. It will be quite helpful. 20th July से start है. और ये कोर्स मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ कि द डे यू स्टेप इनटू दिस कोर्स दिस विल मेक यू सक्सीड. बिकॉज एज आई टोल्ड वी फॉलो अ स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी विल मेक you successful in clearing this examination, and I assure that your name will be in the list if you follow us properly. Thank you so much guys. I hope this video would have been of a great help to you. Keep working hard. I have given all the knowledge that I had which will help you immensely, because during the time I was preparing there were no such videos that were available and we had to work our
ओन पाथ एंड आई होप आपको एक प्री मेड पाथ मिल गया होगा जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा. सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम वेरी श्योर दैट आई विल फाइंड योर नेम इन द लिस्ट वेरी वेरी सून.